Hello, students. Today, once again, we are going to discuss synchronic linguistics, which is already discussed, but here I'm going to discuss in Hindi as well. Before proceeding, I would like to thank Mr. Richard Nordquist as he has explained very well this concept synchronic linguistics. We all know that linguistics is the scientific study of language and synchronic is sin means along with or together, right? So that's a synchronic. Chronic is time, so together and time, the study of language together or particular time is called synchronic linguistics. According to this text, synchronic linguistics is the study of language at one particular period, especially current, right? That is present. In synchronic linguistics, we don't study about the past, means earlier, what was the form of the language earlier, and what will be the next stage, means how language can be changed in future. We don't discuss, we just discuss the current form of language. And synchronic linguistics is also known as descriptive linguistics or general linguistics. Why descriptive? Because it describes the what we can say, that it describes the relation between parts of speech and rules, right? So that is why it is called descriptive linguistics. What are the important points? So important points is synchronistic linguistics, the study of a language at particular time. In contrast, diachronic linguistic studies the development of language over time, how Middle English has become modern English. So this is the this approach is called diachronic linguistics. Now, synchronistic linguistics is often descriptive, analyzing. Why it is descriptive? Because it analyzes how the parts of language or grammar work together. For example, if we see that common structure of English language is sentences, that's a subject plus verb plus object. So if subject is singular, then we have to make agree verb with subjects. So that is called subject verb agreement. Means subject is singular, verb must be a singular. Subject is plural, verb must be plural. So these kind of discussion is done in synchronistic linguistics. Example, a synchronic study of language is a comparison of languages. Please take care, that's a comparison of languages or dialects. मतलब इसमें हम लैंग्वेजेस का कंपैरिजन करते हैं या डायलेक्ट्स का कंपैरिजन करते हैं. अब डायलेक्ट्स क्या होता है? तो डायलेक्ट्स इज वेरियस स्पोकन डिफरेंसेस of the same language used within some defined special region and during the same period of time. तो जब हम इनका कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, किसकी? या तो लैंग्वेजेस की या डायलेक्ट्स की. तो मैं आपको आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखा हमने कि ये जो डेफिनेशन है सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज की, विच इज़ गिवन बाय कोलिन एलेन डोनली, राइट. और उनकी बुक है ये लिंग्विस्टिक्स फॉर राइटर्स, जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया. अच्छा, पहले उनका एग्जाम्पल देखते हैं. वो एग्जाम्पल बताते हैं कि यूएस में डिटरमाइनिंग द रीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन विच पीपल करेंटली से पॉप. पहले वो क्या बोलते थे? पहले वो बोलते थे सोडा या सोडा. पहले वो बोलते थे सोडा, अब वो सोडा की जगह यूज़ करते हैं पॉप.
और पहले आइडियर बोला जाता था, तो जो कि अब नाउ दे यूज़ आइडिया, राइट। तो ये ध्यान रखिए कि ये वाले एग्जाम्पल्स ऑफ द टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज पर्टिनेंट टू सिंक्रोनिक स्टडीज। तो ये सिंक्रोनिक स्टडी को के अंतर्गत होता है जब हम अभी क्या यूज़ करते हैं, फ़िलहाल क्या यूज़ करते हैं, पहले क्या करते थे। लेकिन तो वो जो स्टडी है करंटली पॉप कहते हैं हम रादर देन सोडा। तो वो पहले सोडा क्यों बोलते थे ये नहीं है, पर आज की डेट में सोडा को क्या बोला जाता है, पॉप। तो वी हैव टू रिमेंबर पॉप। ये ऐसा जो होता है, या आइडियर नहीं बोल के अब हम आइडिया बोलते हैं। दूसरा मैं आपको बता रही थी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो अभी अगर हम दोनों को पैरेलली कंपैरिजन करें तो ब्रिटिश इंग्लिश में दे आर वेरी मच सीरियस फॉर ग्रामर, राइट, एंड दे यूज़ यू इन कलर। फॉर एग्जाम्पल COLOR है ना, COLOR और COLOUR, राइट। तो ये यू इट्स ब्रिटिश इंग्लिश एंड विदाउट यू एक्सेप्टेबल इन अमेरिकन इंग्लिश। तो ये जो है सिंक्रोनिक स्टडी है, राइट। अब सिंक्रोनिस्टिक व्यूज लुक एट अ लैंग्वेज एज इफ इट इज़ स्टैटिक। वो ऐसा मानते हैं कि यही परमानेंट है, यही है। तो वो कहते हैं कि सिंक्रोनिस्टिक व्यूज़ क्या है कि लैंग्वेज इज स्टैटिक नॉट चेंजिंग, वो चेंज नहीं होती। जबकि हम कहते हैं लैंग्वेज इज़ द मैटर ऑफ फ्लक्स, लैंग्वेज कीप्स ऑन चेंजिंग बाय द टाइम। अभी भी आज भी कुछ ना कुछ इंक्लूजन होता है, एक्सक्लूजन होता है, लैंग्वेज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो लैंग्वेजेस कंटिन्यूअली इवॉल्व दो इट इज़ स्लो इनफ दैट पीपल डोंट नोटिस इट मच वाइल इट्स हैपनिंग। अभी भी लैंग्वेज का ये प्रोसेस जो है इवोल्यूशन इज़ वेरी स्लो, नोटिसेबल नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज होती रहती है, राइट। दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव नोटिस दैट आर्केइक, कुछ आप वर्ड मीनिंग देखना तो उसमें लिखा था आर्केइक। क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो अभी यूज़ में नहीं है, नॉट इन यूज़ इन करेंट टाइम, राइट। तो आर्केइक या ओल्ड फैशन लिखा रहता है। तो यही कहना है कि सिंक्रोनिस्टिक views look at that the language is static not changing but language changes, language change तो होती है, right। the term was coined by Swiss linguist कौन थे, Ferdinand de Saussure, that for which he is now most known was just a portion of his contributions to academia. His specialty was the analysis of Indo-European languages and तो इन्होंने Indo-European languages पे बहुत काम किया। and his work generally studied languages over time और diachronic linguistics। उन्होंने नहीं माना कि लैंग्वेज इज़ फिक्स्ड, वो जानते थे अच्छी तरह से कि लैंग्वेज जो है उनके वर्क में उन्होंने जो स्टडी की है वो डायक्रॉनिक या हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की स्टडी ज़्यादा की है, क्योंकि लैंग्वेज का इवोल्यूशन कैसे हुआ और कैसे होगा इसके बारे में उन्होंने ज़्यादा बताया है। तो ये एक इंट्रोडक्शन है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स का। अब हम देखेंगे कि सिंक्रोनिक वर्सेस डायक्रॉनिक अप्रोचेस अलग अलग क्या हैं। तो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स इज़ वन ऑफ द टू मेन टेम्पोरल डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि सिंक्रोनिक सेपरेटली डिस्कस नहीं किया जा सकता और ना ही डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स कैन नॉट बी डिस्कस सेपरेटली। वाई? बिकॉज दे आर द टू मेन टेम्पोरल डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज स्टडी इंट्रोड्यूस्ड बाय Saussure इन हिज बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। ये याद रखिएगा, 1916 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, जिसमें इन्होंने बताया कि सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक टू मेन टेम्पोरल डायमेंशंस ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़ है ना। तो लैंग्वेज की स्टडी के लिए सिंक्रोनिक भी एक अप्रोच है और डायक्रॉनिक, दो टेम्पोरल डायमेंशंस हैं। ये इन्होंने इनकी कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स जो 1916 में पब्लिश हुई इसके बारे में बताया।
द अदर इज़ अ डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। दूसरा इसका दूसरा फेस है वो है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स, विच इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। ये तो हमें पता है कि डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी, दैट्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज थ्रू periods of time in history. The first looks at a snapshot of a language and the other, तो एक स्नैपशॉट है बिल्कुल शॉर्ट में। जब हम लैंग्वेज को देखते हैं तो फर्स्ट मतलब सिंक्रोनिक, तो द सिंक्रोनिक लुक्स स्नैपशॉट ऑफ लैंग्वेज एंड द अदर स्टडीज इवोल्यूशन लाइक अ फ्रेम ऑफ फिल्म वर्सेस मूवी। कि अगर हम किसी फिल्म का फ्रेम या पोस्टर देखते हैं और मूवी देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो फ्रेम में जो हम देखते हैं वो क्या है, दैट इज़ सिंक्रोनिक, राइट। और मूवी पूरा देखते हैं, कहाँ से क्या हुआ पूरा डिटेल जो देखते हैं, दैट इज़ डायक्रॉनिक। ऐसे याद रखो आप। ओके, नाउ दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एनालाइजिंग द वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस in old English only would be the study of synchronistic linguistics। अगर हम वर्ड ऑर्डर को एनालाइज करते हैं कब, ओल्ड इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर कैसा होता था, तो दैट अप्रोच इज कॉल्ड synchronistic linguistics। If you looked at how word order changed in a sentence from old English to middle English, आपने तो सिंक्रोनिक में सिर्फ देखा कि ओल्ड इंग्लिश में वर्ड ऑर्डर कैसा था, पर अगर आप ये देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश बनने में क्या चेंजेस आए, इफ़ यू लुक्ड एट हाउ वर्ड ऑर्डर चेंज्ड इन अ सेंटेंस फ्रॉम, तो वर्ड ऑर्डर कैसे चेंज हुआ एक सेंटेंस में, ओल्ड इंग्लिश में क्या था, मिडिल इंग्लिश में क्या है, और अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, ये पूरी स्टडी है, ये डायक्रॉनिक स्टडी है। ठीक है, चलिए। से यू नीड टू एनालाइज हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स अफेक्टेड अ लैंग्वेज। अगर हमें ये एनालाइज करना है कि हाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स अफेक्टेड अ लैंग्वेज, मतलब क्या कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं वो लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं। इफ़ यू लुक एट व्हेन द नॉर्मन्स, तो कैसे भाई हिस्टोरिकल इवेंट्स हमने देखा, स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में हमने देखा था ना कि इफ़ यू लुक एट व्हेन नॉर्मन्स कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड in 1066 and brought with them a lot of new words to be injected into English। तो हमने देखा था कि जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड को कॉन्कर किया 1066 में, तो वो अपने साथ कुछ नए वर्ड्स लेके आए जिसको उन्होंने इंग्लिश में इंजेक्ट किया, है ना। और फिर अ डायक्रॉनिक लुक कुड एनालाइज व्हाट न्यू वर्ड्स, तो अगर हम डायक्रॉनिक देखते हैं कि अगर वो अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, तो डायक्रॉनिक क्या एनालाइज करेंगे कि व्हाट न्यू वर्ड्स वर अडॉप्टेड, विच वन फेल आउट ऑफ यूज़ and how long that process took for select words। तो पूरा डिटेल क्या कि what new words were adopted, कौन से नए वर्ड्स अडॉप्ट हुए, कौन से वर्ड्स रिप्लेस हुए, राइट, कौन से वर्ड्स आर्केइक या ओल्ड फैशन हो गए, और हाउ लॉन्ग दैट प्रोसेस टुक फॉर सेलेक्ट द वर्ड। एक दिन में तो कोई वर्ड सेलेक्ट नहीं हो जाता डिक्शनरी के लिए, उसका एक प्रोसेस है कि अगर आज भी रोज़ डिक्शनरी में एक नया वर्ड ऐड होता होगा तो कुछ वर्ड डिलीट भी हो जाते होंगे या ओल्ड फैशन हो जाते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है कि वो वर्ड कैसा, उसका क्या क्राइटेरिया, कैसे करके वो अडॉप्ट किया गया और कैसे वो क्या प्रोसेस था, कितने, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ लॉन्ग दैट प्रोसेस टुक फॉर सेलेक्ट वर्ड्स। तो वो पूरा कि वो प्रोसेस क्या है उसको समझने के लिए, तो वो पूरी स्टडी इज़ डायक्रॉनिक। अब सिंक्रोनिक स्टडी माइट लुक एट द लैंग्वेज एट डिफरेंट पॉइंट्स बट द नॉर्मल्स और आफ्टर। अब यहाँ पर याद रखिए कि जो सिंक्रोनिक स्टडी है वो क्या करेंगे, लुक एट द लैंग्वेज एट डिफरेंट पॉइंट्स बिफोर नॉर्मल्स
और आफ्टर, कि नॉर्मल्स आए पहले और बाद में क्या, उससे स्टडी नहीं करेंगे। वो अगर ओल्ड इंग्लिश की स्टडी करें तो सिर्फ ओल्ड इंग्लिश की, ओल्ड इंग्लिश क्या लेकर आए थे, इसके बाद अगर कुछ होता है चेंजेस तो क्या, उसकी स्टडी नहीं करते। वो भी करंट में उस समय क्या लैंग्वेज ये जब आ गए और इसके बाद क्या लैंग्वेज थी उसकी स्टडी को, तो ये वाली जो अप्रोच है वो सिंक्रोनिस्टिक लिंग्विस्टिक अप्रोच है। नोट हाउ यू नीड अ लॉन्गर टाइम पीरियड फॉर द डायक्रॉनिक स्टडी दैन सिंक्रोनिक स्टडी। तो डायक्रॉनिक नेचुरली लंबा होगा, ये स्टडी ज़्यादा टाइम लगाएगी, और सिंक्रोनिक में आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की स्टडी करना है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। चलिए अब एग्जाम्पल। When people had more opportunities to change their social class in 1600 से, they started using the words thee and thou less often। जब क्या हुआ कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी, उनकी सोशल क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा सोशल क्लास बदलने से। तो हम आ गए समझिए 16th सेंचुरी में। तो क्या हुआ कि जब लोगों को उनकी सोशल क्लास चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिली, तो दे स्टार्टेड यूजिंग वर्ड्स दी एंड दाउ लेस ऑफन। तो फिर क्या हुआ, सोशल क्लास, क्योंकि हर क्लास की इवन आपको ये पता होना चाहिए कि लेबर क्लास तो मिडिल क्लास तो हायर क्लास एलीट क्लास, हर सोशल क्लास की एक अपनी वोकैबलरी है। तो जब लोगों को 1600 में ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी सोशल क्लास को चेंज कर रहे थे, तो दे स्टार्टेड यूजिंग वर्ड्स दी एंड दाउ लेस ऑफन। तो वो अपनी लैंग्वेज में दी दाउ यूज़ नहीं करते थे, राइट। अब क्या हुआ उससे, इफ़ दे डिड नॉट नो द सोशल क्लास ऑफ पर्सन दे वर एड्रेसिंग, they would use the formal pronoun you to be safely polite, leading to the demise of thee and thou in English। और क्या हुआ कि फिर उसका रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो इफ़ दे डिड नॉट नो द सोशल क्लास ऑफ द पर्सन, कि अगर हमें किसी किस पर्सन की सोशल क्लास नहीं पता, दे वर एड्रेसिंग, दे वुड यूज़ फॉर्मल प्रोनाउन यू टू बी सेफली पोलाइट, लीडिंग टू द डिमाइज ऑफ दी एंड दाउ इन इंग्लिश। तो धीरे धीरे दी और दाउ का यूज़ कम होने लगा, और अगर पर्सन यू को ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो एक वोकैबलरी से हम जाने जाते हैं, तो हमारी रिफ्लेक्शन, हमारी पर्सनालिटी, हमारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने यू एक तरह से एलीट क्लास यूज़ करती थी, तो धीरे धीरे उन्होंने एक फॉर्मल प्रोनाउन यूज़ किया, यू बहुत सेफली यूज़ किया, और दी और दाऊ धीरे धीरे डेड होने लगे। दिस वुड बी अ डायक्रॉनिक लुक। क्यों? क्योंकि अगर हम ये पूरी स्टडी करते हैं कि दी और दाऊ कब से शुरू हुआ, फिर यू का यूज़ कब हुआ, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, डायक्रॉनिक लुक। A description of words and how they were used at time in comparison to pronoun you would be a synchronic description। अगर हम सिर्फ अभी देखते हैं कि the description of word how they were used at time in comparison to pronoun, कि अगर हम comparison देखते हैं कि दो और you का comparison देखते हैं, वुड बी सिंक्रोनिक डिस्क्रिप्शन। तो ये एक सिंक्रोनिक डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो क्यों उनका रिप्लेसमेंट हुआ, सोशल क्लास चेंज होने के कारण हुआ, ये डिटेल है। तो ये क्या है, ये डायक्रॉनिक अप्रोच है, ठीक है। अब बिफोर सशोर इट वॉज कंसिडर्ड दैट द ओनली ट्रू साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज कुड बी डायक्रॉनिक, बट बोथ अप्रोचेज आर यूज़फुल। तो ऐसा माना जाता था कि अगर जब तक आपने साइंटिफिक स्टडी करना है, इसका मतलब कि डायक्रॉनिक ही होना चाहिए। पूरी हिस्ट्री, हर बार हिस्ट्री की क्या, एटिमोलॉजी आपको पता होगा, एटिमोलॉजी मतलब कि किसी वर्ड की हिस्ट्री है ना, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे डेवलप हुआ वो वर्ड, है ना। तो ये सारी स्टडी को एटिमोलॉजी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अज्यूम किया जाता था, सशोर ने जब अपनी बुक लिखी उसके पहले,
कि अगर ट्रू साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है तो वो बस डायक्रॉनिक है, मतलब आपको पूरा हिस्ट्री उसकी डिस्कस करना ही पड़ेगी। बट बोथ अप्रोचेज आर यूजफुल, लेकिन दोनों अप्रोचेज इक्वली इम्पॉर्टेंट है, सिंक्रोनिक भी और डायक्रॉनिक भी। नाउ इन द थर्ड एडिशन ऑफ सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एन इंट्रोडक्शन, ये नाम है सिंक्रोनिक इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एन इंट्रोडक्शन, द ऑथर्स एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। तो उसमें इसमें सिंक्रोनिक इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन में ऑथर्स ने टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स को बताया। एज इट इज़ नेसेसरी टू नो हाउ अ सिस्टम वर्क्स एट एनी गिवन टाइम बिफोर वन कैन होप टू अंडरस्टैंड चेंजेस, द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम सच दैट सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स now usually precedes the study in terms of diachronic linguistics। क्या कहते हैं वो कि as it is necessary to know how a system works, कि एक सिस्टम कैसे वर्क करता है at any given time before one can hope to understand changes, the analysis of language as a single point of time। तो कैसा एनालिसिस कि बस एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम उसकी स्टडी करते हैं कि वो लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। मान लीजिए मुझे मेरे स्टूडेंट्स को अभी करंट की लैंग्वेज सिखाना है, तो मैं उनको बताऊंगी कि भाई सबसे ये स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर, यहाँ सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वो भी सिंगुलर होगी, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये भी नाउन है ये भी नाउन है, तो ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, सब्जेक्ट इज़ डूअर एंड ऑलवेज प्लेस बिफोर द वर्ब। अगर मैं ऐसा कुछ उसको पढ़ा रही हूँ तो ये जो मैं उसको रूल्स बता रही हूँ, तो यही दैट सेम दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ अ सिस्टम वर्क्स एट गिवन टाइम। मुझे नहीं पता पास में क्या था, मैंने अभी बता दिया उनको कि अभी उसको ऐसा ऐसा कि अभी ये करंट है, ये पढ़ना है ना, परंतु बिफोर वन कैन होप और टू अंडरस्टैंड चेंजेस, तो मैं उसका एनालिसिस नहीं कर रही हूँ, बस होप टू अंडरस्टैंड चेंजेस। तो क्या करूँगी मैं कि क्या चेंजेस आए, क्या वो तब डिस्कस नहीं करूँगी उस स्टूडेंट से, मैं सिर्फ अभी करंट क्या चल रहा है ये बताऊँगी। वो अप्रोच इज कॉल्ड सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। नाउ यूजुअली प्रोसीड्स द स्टडी इन टर्म्स ऑफ डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स। कहीं ना कहीं दोनों टर्म्स बराबर ही रहते हैं, क्योंकि डायक्रॉनिक मतलब फिर अगर मैं उसके साथ साथ उसको उस बच्चे को एटिमोलॉजी भी डिस्कस कर रही हूँ, उसका ओरिजिन बता रही हूँ, डेवलपमेंट बता रही हूँ, तो वो डायक्रॉनिक हो गई। सिंक्रोनिक तो अभी करंट बताया ही, और डायक्रॉनिक भी हो गई, है ना। अब सिंक्रोनिक स्टडीज लुक एट what associates with what, how parts interact at any given time। synchronic studies क्या करता है, look at what associates with what, मतलब किसके साथ क्या आता है, कि अगर वर्ब है और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है तो ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव है, अगर वर्ब में के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव है। तो वो यही कह रहे हैं कि वॉट एसोसिएट्स वॉट, किसके साथ क्या आएगा, हाउ पार्ट्स इंटरेक्ट, है ना, एट एनी गिवन टाइम। तो आज के टाइम में ये फॉर्मेट चलता है, और ये मैं उसको समझा रही हूँ, सपोज मेरे स्टूडेंट्स को आपको समझा रही हूँ सपोज, ठीक है। और तो ये सिंक्रोनिक स्टडीज़ हो गई। और डायक्रॉनिक स्टडीज़ लुक एट व्हाट कॉजेज व्हाट। अब ये है व्हाट कॉजेज व्हाट एंड हाउ थिंग्स चेंज ओवर। कॉज बता रहे हैं हम, व्हाट कॉजेज व्हाट, ये क्या है, व्हाट कॉजेज व्हाट, एंड हाउ थिंग्स चेंज ओवर टाइम, और टाइम के साथ क्या चेंजेस आया उसको कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम बस ये बता रहे हैं कि व्हाट एसोसिएट्स विथ व्हाट, किसके साथ क्या आएगा। कि अगर आपने कहा कि यहाँ पर मैं एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ, अगर आपने कहा वन ऑफ माय फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स, तो मैंने एस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि वन ऑफ, ऐसा मैं आपको समझा रही हूँ। तो क्या आएगा इसमें कि अगर इफ़ यू आर यूजिंग सच फ्रेज वन ऑफ माय, सो दैन इट विल बी प्लूरल, ठीक है, फ्रेंड्स। तो व्हाट एसोसिएट्स विथ व्हाट, मतलब कि अगर ये वाला फ्रेम वन ऑफ वाला हम यूज़ कर रहे हैं
तो नाउन हमेशा प्लूरल होगा, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ऐसा। तो ये दैट स्टडी इज कॉल्ड सिंक्रोनिक। और डायक्रॉनिक स्टडीज लुक एट व्हाट कॉजेज व्हाट। तो मैं वो पहला तो रीज़न बताऊंगी कि व्हाट कॉजेज व्हाट, क्या रीज़न है, क्यों ये आएगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको उसी को कह रही हूँ कि अगर मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना, तो उसका रीज़न बता रही हूँ मैं, क्योंकि कम से कम 2 फ्रेंड होंगे तो उनमें से एक। एंड हाउ थिंग्स चेंज ओवर टाइम। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले जो सी का प्रोनाउंसिएशन था, ओल्ड प्रोनाउंसिएशन, वो अलग था और इस सी का प्रोनाउंसिएशन सी था। लेकिन अभी दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक जैसा है, ये है सी। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्यों ये प्रोनाउंस एक जैसा प्रोनाउंस होने लगे दोनों वर्ड, इसका रीज़न अगर मैं बताती हूँ तो वो डायक्रॉनिक स्टडीज़ है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंक्रोनिक स्टडीज़। Synchronic linguistics is descriptive linguistics, such as the study of how parts of language, morphs or morphemes, combine to form words and phrases, and how proper syntax gives a sentence meaning. बहुत important. सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स है, अभी हमने देखा, या जनरल लिंग्विस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि सच एज द स्टडी ऑफ हाउ पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज क्या है, मॉर्फीम्स, जिसको मॉर्फ भी कहते हैं, कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स और एंड फ्रेजेस, हमने अभी आईसी एनालिसिस किया था ना। एंड हाउ प्रॉपर सिंटेक्स गिव अ सेंटेंस मीनिंग, कि भाई अगर मैंने यहाँ रख दिया वो, यहाँ रख रही हूँ सेंटेंस और यहाँ रख रही हूँ ऑब्जेक्ट, और मैंने कहा कि एग्जाम्पल है किल्ड, किल्ड राम रावण, तो ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है ना, क्योंकि इसमें ऑर्डर डिस्टर्ब है, तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं निकलेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये बताऊँगी आपको कि मॉर्फ और मॉर्फीम्स मतलब वर्ड्स, है ना। तो मैंने कहा कि अगर कोई वर्ड बनता है तो यहाँ पर उस वर्ड को, कि यहाँ पर हाउ पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स। अच्छा, वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस, है ना, पहले तो वर्ड्स की बात करते हैं। अगर मैंने कहा डी एक्टिवेट, एक्टिवेट, है ना, तो यहाँ पर डी ऐसा, पर मैं अगर इसको रीएक्टिवेट कर सकती हूँ, है ना, पर मैं इसको एनएक्टिवेट, या फिर मैं इसको किसी भी वर्ड से इसको किसी भी प्रीफिक्स के साथ नहीं बना सकती, मुझे प्रॉपर प्रीफिक्स लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मीनिंग के लिए। कि अगर रीएक्टिवेट मैंने बोला तो इसका मतलब है अगैन, विच इज़ एक्टिवेटेड अगैन, लेकिन मैंने कहा डीएक्टिवेट तो विच इज़ नॉट एक्टिवेटेड, राइट। तो ये जो है, ये स्टडी की हाउ पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स, तो यही बताया अभी आपको, है ना। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि डी डी अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, राइट, बिलीवेबल, राइट। तो यहाँ अन और एबल और बिलीव, राइट, ये क्या है, रूट वर्ड है, ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। तो अगर मैं ऐसे वर्ड्स लेती हूँ, मैंने लिया अनबिलीवेबल तो एक वर्ड बना। अब अगर फ्रेजेस बनाना है तो हाउ, रिपीट कर रही हूँ उसको बार बार, हाउ पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, मैंने बताया आपको, कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स, तो अनबिलीवेबल एंड फ्रेजेस एंड नाउ प्रॉपर सिंटेक्स। तो फ्रेजेस कैसे, कि अगर मैंने कहा ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, ये एक फ्रेज है। आई वॉज कुछ भी, आई वॉज थिंकिंग टू जॉइन द सेशन, राइट।
तो यहाँ पर on the other hand phrase है, and now proper syntax gives a sentence meaning. अगर मैंने on the other hand लगाया, कॉमा लगाया, I was thinking to join the session, तो ये एक proper meaning दे रहा है इस सेंटेंस को. तो ये जो है ये सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है. अब इन 28th century द सर्च फॉर यूनिवर्सल ग्रामर. क्या हुआ कि ग्रामर बनी, लैंग्वेज बनी. लैंग्वेज बहुत जब बिल्कुल बेस मतलब स्टार्टिंग में थी, जब बनी थी, तो जब वो कहना चाहिए कि बिगनिंग में जब वो क्या बोलेंगे उसको कि यानी बहुत रॉ फॉर्म में थी, से बनते 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 फिर अब एक रूल बनने लगा. तो फिर यूनिवर्सल, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए यूनिवर्सल ग्रामर की ज़रूरत पड़ी. तो इन 28th century द सर्च फॉर यूनिवर्सल ग्रामर दैट which is instinctive in humans, instinctive inborn in humans, and gives them the ability to pick up their native languages as an infant is synchronic area of study. क्यों? क्योंकि एक छोटा बच्चा ये कह रहे हैं कि 20th century में द सर्च for a universal grammar that which is instinctive in humans and gives them the ability to pick up their native languages as an infant is a synchronic area of study. छोटा बच्चा अपने आप ही अपनी नेटिव लैंग्वेज सीख जाता है. वो अपने आप रूल्स को उसका ब्रेन इंटरनलाइज करता है और वो वर्ड्स को ग्रास्प करता रहता है. और ये सारी स्टडी क्या है? ये सिंक्रोनिक एरिया ऑफ स्टडी है ना. अब स्टडीज़ ऑफ डेड लैंग्वेजेस कैन बी सिंक्रोनिक. जो लैंग्वेजेस आज यूज़ नहीं होती है, तो वो जो स्टडी है वो क्या है? दैट्स अ डेड लैंग्वेजेस की स्टडी जो है वो सिंक्रोनिक है. एज बाय डेफिनेशन दे आर नो लॉन्गर स्पोकन और नो नेटिव और फ्लुएंट स्पीकर नॉर इवॉल्विंग एंड आर फ्रोजन इन टाइम. जो कि क्या कह रहे हैं वो कि studies of that language can be synchronic as by definition they are no longer spoken. जो नहीं बोली जाती है, no native or fluent speakers nor evolving and are frozen. अब वो frozen in time, बस वो particular time के लिए थी, अब नहीं बोली जाती है. तो ऐसे वाले जो लैंग्वेजेस की स्टडी है वो सिंक्रोनिक लैंग्वेज में आती है. तो मुझे लगता है काफ़ी यूज़फुल है ये टेक्स्ट, वेरी यूज़फुल. सो थैंक यू सो मच वंस अगैन ऑल ऑफ यू for listening patiently. And one more thing, that's we are going to discuss in next video, we are going to discuss diachronic linguistics and other texts related to synchronic and diachronic linguistics. Thank you so much. God bless you. यार गर्लफ्रेंड